Okay, so are you all ready with your books in front of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड. इधर सब लोग खोल लो ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ आप लोगों को दिखाई दे. Just a second, let me take my digital pen. Wait a second. Okay, you know whatever parts I will kind of underline. आप लोग भी एक पेंसिल लेके बैठो. Everyone please take a pencil or a highlighter. Everyone be ready with it. Whatever lines in the NCERT book I will underline or say it is important. आप लोग भी उससे करते रहना, so that while you will revise for your examinations, it will be easy, and even for your question answers. So, okay, let us start then. Okay, everyone, can you all see the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, हम लोगों ने यहाँ तक उस दिन पढ़ा था. We have read till here. So let us again do a little bit of. ये वाला पेज हो गया था ना बच्चों? I think we completed this page, the first page, the other day. Yes, sir. We have completed this page. Yes. So let us become people and representatives. People और उनके representative. You know ये chapter कुछ कठिन नहीं है. It is not at all. इसको अच्छे से आप समझें. I will read from the NCERT so that it is clear to everyone, because there are some interesting questions also side by side. People and their representative. As we all know, elections happen. Everyone knows parliament mein. I think everyone knows that for entire India there is one parliament. You all know in Delhi. Yes, sir. Indian parliament. Yes, sir. Yes. But I think everyone also knows. Yes, but everyone also knows that in every state we have a Vidhan Sabha or a state legislative assembly. Like every state also has its own parliament. पता है ये बात? Everyone knows that also. Yes. 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 So remember that कि elections दोनों के लिए होते हैं. You know, to choose our representatives, there are two kind of elections. आप लोग सुनते होंगे, like right now, it very famous election happened few around 1 month back, West Bengal elections. People were thinking, Yes, sir. but again Mamata Banerjee won. So that is a state election. That is done to choose MLAs. MLA. MLA means Member of Legislative Assembly. इस इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना. ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर क्लियर. MLA क्या होता है फुल फॉर्म? मेंबर Of Legislative Assembly. ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? विधानसभा, दैट इज स्टेट पार्लियामेंट. और एमपी क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज एमपी बच्चों? Member of Parliament. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये ऑल इंडिया लेवल के लिए होता है. दिस इज फॉर द इंडियन पार्लियामेंट. सो इन दोनों को हम ही चूज करते हैं. वी ओनली चूज. नाउ अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज के जो हेड होंगे, द हेड ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर. एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होंगे, जो हेड लीडर होंगे ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीतेगी, दैट विल बी द चीफ मिनिस्टर. इसको हमेशा याद रखना. सो एमएलएज एंड एमपी आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, लाइक स्मृति ईरानी, अभी तो कैबिनेट चेंज हो गया है, अमित शाह एंड अदर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब एमपी हैं. याद रखना, दे ऑल आर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये सभी एमपीज हैं एंड वी हैव चोजन देम. उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी तो हार गई थी, वो एमएलए का चुनाव हार गई थी, बट अभी उनको फिर से जीतना पड़ेगा कुछ महीनों में. बट एमएलएज को हम चूज करते हैं स्टेट लेवल. So, people and their representatives. The takeoff point for a democracy is the idea of consent. Consent मतलब लोगों की अनुमति. People's approval.
द डिजायर ऑफ पीपल, द अप्रूवर ऑफ पीपल, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के लिए है, लोगों से है, और लोग ही उसको बनाते हैं। It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. तो देखो मैं यहाँ पे बीच बीच में कुछ हाईलाइट करता रहूंगा, so you also keep on highlighting or underlining like this. It is the decision of the people that creates a democratic government and decides about its functioning. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगा, एक डेमोक्रेटिक देश कैसे चलेगा, इसको लोग डिसाइड करते हैं उस देश के। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of the citizens. So सबसे main important idea क्या है democracy का, that the individual or the citizen is the most important person. और कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और भी गवर्नमेंट स्कूल, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट का हो, उन सभी को उस देश के लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स वर्दी ऑफ पीपल्स ट्रस्ट। ये पैराग्राफ समझ में आया कि इन डेमोक्रेसी ईच इंडिविजुअल पर्सन ऑफ अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes, got it? Yes sir. चलो आगे। Yes sir. How does the individual give, अच्छा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, how does the individual give approval to the government? कैसे हम गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते हैं, how we become part of the decision making process? बोलो आप लोग, you all tell me. By giving election. Not by giving elections, by giving votes, by electing our representatives in elections. गिविंग इलेक्शंस नहीं, यू नो द सेंटेंस इज रॉन्ग। हाँ भूमि, मतलब भावनाएं ठीक है, सेंटेंस गलत है। क्या होता है इलेक्शंस में, वी चूज आवर बाय चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इलेक्शंस एंड बाय डिसाइडिंग हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इजंट इट? हम ही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बीजेपी बनाएगी कि गवर्नमेंट कांग्रेस बनाएगी, इजंट दैट? सो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो, एज यू रेड, इज थ्रू इलेक्शंस। एक वे है थ्रू इलेक्शंस, और एक वे क्या है, इलेक्शंस में खड़े होके। देयर आर टू वेज। वन वे इज दैट वी आर गिविंग वोट एंड वी आर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। अनदर वे इज दैट वी आवरसेल्व्स बिकम कंटेस्टेंट इनटू इलेक्शंस। हम खुद कंटेस्टेंट बनते इलेक्शन में, और हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं एमपी एमएलए बनने के लिए, टू रिप्रेजेंट पीपल। तो या तो हम ईदर वी चूज रिप्रेजेंटेटिव्स और वी बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं या तो हम खुद रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। People would elect representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, जब इलेक्शंस होते हैं तब लोग कांग्रेस को भी चूज करते हैं, बीजेपी को भी चूज करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को भी चूज करते हैं, isn't it? लोग सभी पार्टी को कुछ ना कुछ वोट देते हैं, isn't it? Yes sir. Yes. Yes sir. गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाती है? Which party makes the government? The ruling party get the most votes. Very correct, Digant. The party which gets the most amount of votes. इसको हम क्या बोलते हैं? What is the another word for that kind of party? Ruling party. Ruling, no, not ruling party. The party which gets majority. The party Legislative. which gets majority vote. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? The party which gets majority vote, that is the majority party. The party which gets maximum amount of votes, that forms the government. अच्छा बच्चों, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि किसी भी पार्टी को ज्यादा वोट्स ना मिले, then what kind of government is formed in that kind of a situation? Can you repeat? I am asking that let us assume that no party is a clear cut winner. किसी भी पार्टी को full majority नहीं मिला है vote. Then what kind of government is formed? हाँ students? Sir, can I speak it in Hindi? Sure, yeah. Sir, the Gathbandhan party. हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
What we call to that kind of a party? Coalition. Something co or something Coalition. like that. ये देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूं coalition party. Coalition, not coalition party, sorry, coalition government. Coalition government. Like, क्या आपने इन दो कोalitions का नाम सुना है? NDA, UPA. Anyone has heard about these coalitions? No, sir. नहीं? अच्छा, I heard only NDA. अच्छा ठीक है. सो रिमेंबर कि जब कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता है, दैट इज मैक्सिमम वोट नहीं मिलता है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में टीम बना लेती हैं. दे मेक देयर ओन टीम, और जिस टीम के पास टोटल ज्यादा वोट होंगे वो टीम गवर्नमेंट बनाएगी. अगर एनडीए में मान लो कि 10 पार्टीज हैं और यूपीए में मान लो 11 पार्टीज हैं, लेकिन एनडीए के 10 पार्टीज को टोटल मिला के यूपीए के 11 पार्टी से ज्यादा वोट मिला, तो एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी. सेम हैपेंस विद यूपीए, तब टीम वर्क काम करता है. सो एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म है, लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ये इसको हेड कौन करता है? बीजेपी. इस एनडीए अलायंस का हेड कौन है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव. आपको दिखाई दे रहा है मैं जो लिख रहा हूं? Yes, sir. यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. इसको हेड कौन करता है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी. और साथ में और भी पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े रहते हैं. सो बच्चों, नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के पहले, बिफोर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट, दैट इज व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर? व्हिच ईयर? 2014. करेक्ट. 2014. Yes, 2014. So after many years मेजॉरिटी का गवर्नमेंट बना, मतलब एक सिंगल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, दैट इज बीजेपी. बट बिफोर दैट, यू नो, फ्रॉम 1990, राजीव गांधी के मरने के बाद से, एज यू ऑल नो, राजीव गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज असैसिनेटेड. उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, यू नो. सो आफ्टर दैट नन ऑफ द, कांग्रेस को भी कभी मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, ना ही बीजेपी को मिला. So there was always coalition government, that is government of many different parties. Either NDA ने पार्टी गवर्नमेंट बनाया, otherwise UPA ने गवर्नमेंट बनाया. So when in an election a single party does not get the majority amount of vote, then coalition government is formed. समझ में आया बच्चों coalition government के बाद? Is it clear? Okay, चलो next. So देखो क्या लिखा हुआ है, people would elect their representatives to the parliament. Coming back to NCERT, then one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, control and guides the government. ये बात आपको पता है कि नहीं? अभी पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बैठती है. Right now in parliament, that is in the Indian parliament, does Congress members also sit with BJP in the parliament? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And what is the role they play? उनका क्या रोल है? Like BJP is the ruling party. They are opposition party and they are asking questions from BJP. Very, very, very correct. Very correct. Mummy? So they ask questions about that. What have you done in the development? Very correct, sir. So you all are quite impressive in civics class. Wow. So अपोजिशन पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. जो पार्टी हारती है वो पार्टी रूलिंग पार्टी को हमेशा लाइक सीसीटीवी कैमरे की तरह देखती रहती है. द अपोजिशन पार्टी ऑलवेज लुक्स एट द रूलिंग पार्टी एज सीसीटीवी कैमरास. व्हाट आर यू डूइंग? आपने क्या किया? व्हाट आर यू डूइंग फॉर द डेवलपमेंट? चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दे ऑलवेज क्वेश्चन एंड द रूलिंग पार्टी विल हैव टू गिव द आंसर. उनको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा. So that is the beauty of democracy. Like no one is actually a loser. Opposition party हार रही है इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन करने का उसको अधिकार है और जवाब मांगने का अधिकार है. So opposition party also has a very important role.
जस्ट इमेजिन अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी ही ना रहे तो क्या हो सकता है बच्चों? मान लो आपके क्लास में कोई टीचर ही ना हो आपको मतलब आपको क्वेश्चन करने के लिए, आपको मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होगा? यू कैन बिकम अनकंट्रोल्ड, इजंट इट? Yes, sir. Lacking. Opposition party kind of keeps a check on all the movements of the ruling party. रूलिंग पार्टी क्या कर रही है हर चीज पे उसका एक चेक रहता है. दैट इज वाई रूलिंग पार्टी कुछ ज्यादा गड़बड़ कभी नहीं कर सकती है, बिकॉज अपोजिशन पार्टी तब हमला बोल देगी. सो द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज वाई इट इज रिटन ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द लूजिंग पार्टी ऑल्सो, फ्रॉम द विनिंग पार्टी ऑल्सो, कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज क्लियर कट रिटन हियर, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. इसको underline कर लो. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. Clear हो गया बच्चों ये पेज पूरा? Clear? Yes, sir. Any question? आप लोग अपने NCERT में देख लो. Otherwise, we will go ahead. चलो ये वाला फोटो देखो, हाथी दिखाई दे रहा है? Everyone can see the हाथी, elephant. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah? This photo shows election staff using an elephant to carry polling material and EVMs, that is electronic voting machines, to polling stations located in difficult terrain. ऐसे जगह पे वो EVMs ले जा रहे हैं जहां पे कि रोड्स कायदे के नहीं है, रेलवे तो है ही नहीं, गाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं, नथिंग कैन गो, नो ऑटो, नो रिक्शा, सो एलिफेंट को ले जा रहे हैं. मीनिंग मे बी इट वाज अ जंगल एरिया, वहां पे आदिवासी लोग रह रहे होंगे समथिंग. ये शो क्या कर रहा है कि इन इंडिया, इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेसी. ऐसे जगहों पे भी इलेक्शंस होते हैं जहां पे रोड्स नहीं है, जहां पे जाने का कोई साधन नहीं है, तो एलिफेंट पे करके जा रहे हैं ईवीएम मशीन इलेक्शंस के लिए. So in India, everywhere elections happen. It is showing that every person, चाहे वो कितने ही remote areas में रह रहे हों, any person living in anywhere on India, everyone is given a chance to give vote and participate in the decision-making process. Isn't that amazing? India being such a big country. Yes. अच्छा, हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर का, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ऑन अ पैडलेट. ओके, एवरीवन विल हैव टू पार्टिसिपेट. मैं देखूंगा किसने किया एंड आई विल गिव मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट. गिव वन रीजन व्हाई यू थिंक दैट देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आपको ये कॉपी में भी करना है. आप ये बताइए कि क्यों ये जरूरी है. व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? Do you think there would be any difference if the class monitor was selected by the teacher or elected by the students? That is interesting. Discuss. This question, ये वाला जो question है, ये हम लोग Padlet पे करेंगे, और ये वाला question आप लोग अपने कॉपी में करेंगे. Am I clear? Yes. Yes, First yes, question you all will do. आज आप लोग अपने answers WhatsApp ग्रुप पे भेजना. आज तो अब तो हमारा WhatsApp ग्रुप है, so we can directly use WhatsApp group, Social Science 1. So first answer you all will give first, both the answers you will give in the class WhatsApp group. The first one you write in the comment. Okay, maza aayega. Think these questions will be. Yes, yes. Sir, if there is a meeting in parliament, then how are the people called? Meaning Means, like sir, there, means that like there are two, like the summer term of the parliament and the winter and the rain. I think there are 3 terms. देखना पड़ेगा exactly. So 3 terms है. हाँ, मानसून सत्र एक होता है, और एक होता है सर्दियों के टाइम पे विंटर. सो यू आर लाइक कि जब वहां पे मीटिंग होती है तो सब लोगों को बुलाया कैसे जाता है पार्लियामेंट में? हाउ दे आर कॉल्ड इन द पार्लियामेंट? दैट इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? sir, means and there is any fixed date? There is any what, Shambhavi? Please again say. The fixed date. Date is fixed. हाँ, fixed dates are there. Yes, fixed date, fixed tenure is there.
हम उसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, दैट व्हाट आर द फिक्स्ड डेट्स एंड फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट मीटिंग्स। एंड बच्चों उनको सब दिया जाता है, यू नो, ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन एवरीथिंग, यू नो, कोई ट्रेन से तो सफर करने वाला है नहीं, एवरीवन इज गिवन प्लेन्स टिकट्स, एवरीथिंग फ्रॉम प्लेन्स टिकट्स, एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट में आने तक का, गाड़ी से लेके सब कुछ उनको दिया जाता है, एवरीथिंग इज गिवन टू देम by our money, by public money. And also they get fixed salary, you know, each member of parliament has a very high salary, above 1 lakh rupees. Every member of parliament gets salaries which is above 1 lakh rupees per month. So fixed tenure is there, and in that fixed tenure you will have to come in the meeting. जरूरी नहीं है बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, but most will have to come. Okay. The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7th social and political life textbooks. Representation के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था 6th और 7th में in civics. Students पढ़ा था पिछले सालों में भी 6th and 7th में, how you choose your representatives. Yes, good. Yes sir. Familiar with how representatives are chosen at different levels of government. आपको ऑलरेडी पता है, I believe, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि आप सबको पता है कि आपको पता है कि कैसे करके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाता है। लाइक पंचायती राज में भी चूज किया जाता है इन विलेज लेवल, इवन इन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी मेयर के लिए भी चूज किया जाता है, देन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट इलेक्शंस, देन इन द नेशनल लेवल इलेक्शंस। Let us recall these ideas by doing the following exercise. ये exercise देखते हैं. Use the term. Can you all see the exercise on your screen, everyone? Yes sir. Yes. Okay. Use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected. Constituency क्या है? Represent करना किसे बोलते हैं? And how an MLA gets elected? That is a good question. We'll discuss that. आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, एंड द पार्लियामेंट, लोकसभा. सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज, पहला डिफरेंस ये है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लेजिस्लेटिव बॉडी व्हिच मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ स्टेट, जो कि एक स्टेट के लिए बनाता है, दैट इज विधानसभा. एंड पार्लियामेंट, लोकसभा, इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी. इसको मैं लिख देता हूं. लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब बच्चों पता है आप लोगों को, लेजिस्लेशन, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं. याद रखना, देश के लिए जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं हम उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए बनाती है, एंड लोकसभा इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव, सब लोग लिख ले अपने कॉपी में भी, असेंबली. मतलब देश का सबसे बड़ा लॉ मेकिंग बॉडी, पूरे देश के लिए जो लॉज बनाते हैं वो क्या है, द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा. इट इज फॉर द नेशनल लेवल. ये डिफरेंस क्लियर हुआ? आई थिंक सबको ऑलरेडी पता था बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड लोकसभा. ओके. हाँ, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट. इंटरेस्टिंग. स्टेट गवर्नमेंट का वर्क हमें देखना है. लेट अस सी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का काम है, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना. गेस करो, एनीवन गेस? दिस इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है ये, कि ये इंडियन पार्लियामेंट का काम है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? So central government. Why? सेंट्रल गवर्नमेंट. Why? Because central government only makes the decision and relationship with China. With any other country, only central government can take decisions regarding the relationship of India with any other country, not only China. So very correct. This is central government. गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में GOVT लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एनीवन एल्स भूमि के सिवा? द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स
in class 8 for all schools under this board. Very easy. Which government? Central government or state government? Sir, this is The a state state- government. Yes, State State government. government. correct. Only याद make रखना, decision. the education related matters, agriculture related matters of any state belongs to the state government. Like अब यूपी में schools खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं, it is totally dependent on, you know, Yogi Adityanath's government. So state government, very correct. Next, introduction of a new train connection between Ajmer and Mysore. ये इंटरेस्टिंग है. Central government. बोलो बच्चों. Sir, central government. Central government. कोई सेंट्रल बोल रहा है, कोई स्टेट बोल. ओके, यू ऑल आर सेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट. बट ये आज खोजना कि किसी भी स्टेट में रेलवेज को लेके अगर कोई डिसीजन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है या स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है. फाइंड आउट टुडे. ओके, आज हमारा लास्ट पीरियड में क्लास है, इजंट इट? टुडे वी हैव अ पीरियड इन द लास्ट पीरियड. Ajmer and Mysore is different state, no? Yes, it is in the different state. Ajmer is in Rajasthan, Mysore is in Karnataka. Mysore, टीपू सुल्तान, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ. So ये खोजना कि रेलवेज को कौन डायरेक्ट करता है, स्टेट में भी और स्टेट विद इन स्टेट्स आल्सो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. वी हैव अ पीरियड इन द फोर्थ पीरियड, वी हैव अ पीरियड, तो तब तक खोज लेना है इसका आंसर. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट. दिस इज इजी. Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट. Government. Central. Like demonetization हुआ था, everyone remembers demonetization. बच्चों याद है demonetization जो हुआ था, नोटबंदी. Yes, sir. In 2016. So who did it? Yes. Central government or state government? Central Sir, government. Central Central government. Correct. Narendra Modi. Not Narendra Modi, Bhumi. Central government. ठीक है. We will, because he is a part of central government. ठीक है. So हाँ, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, obviously because he is the executive, main executive person. So what is the thing that currency related matter, money related matter, economy related matter is handled by central government. Now fill in the blanks with the following words: universal adult franchise, MLAs, representatives directly. So ये आपका homework है. This is the homework till the fourth period. कर लोगे? फोर्थ पीरियड में इसका जवाब दे सकते हो सब लोग? Yes. इसको देख के रखना. Yes, sir. Next, you have read that most elected members, whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. हमको पता है 5 साल के लिए किया जाता है. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for a life? सोचना. ये आपका आज घर का होमवर्क है. This is for your home. क्योंकि कल मैं लीव पे हूँ, परसों मैं इसका आंसर पूछूंगा. क्यों 5 साल के लिए ही हम इलेक्ट करते हैं? क्यों हम 50 साल के लिए इलेक्ट करते हैं या 100 साल के लिए इलेक्ट करके किसी को? व्हाई नॉट दैट? लाइक क्यों नहीं करते हैं? या परमानेंटली क्यों नहीं हम किसी को फिक्स कर देते हैं? परमानेंटली नरेंद्र मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और परमानेंटली लेट अस से किसका नाम लें? आयशा. आयशा इज द ग्राम प्रधान ऑफ हर विलेज, लेट अस से. और भूमि इज द मेयर ऑफ वाराणसी, लेट अस से. परमानेंट. ऐसा क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट वी डू? आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता है, isn't it? दिमाग में एक आंसर है ना ऑलरेडी? Yes. Yes, I know. Next, you have read that people participate in other ways and not just through elections to express approval or disapproval of the actions of government. सिर्फ elections के थ्रू ही हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और भी दूसरे वेज हैं. Can you describe 3 such ways through a small skit? प्ले करने को बोल रहे हैं, हम उसको देखेंगे. इट इज इंटरेस्टिंग. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है विद ऑल दिस एक्सरसाइजेस. इसको मैं बाद में समझाऊंगा. ठीक है. 5th वन आप लोग आज सोच के रखिएगा. दिस कैन बी अ पैरेलल डिस्कशन, द 5th वन. चलो, लेट अस गो इनटू द नेक्स्ट वन. यस, हियर वी ऑल सी. कैन यू ऑल सी द फोटोग्राफ? दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anyone has seen it live? कोई दिल्ली में देखा है live? Anyone has gone? Sir, this is Rajya Sabha or Parliament?
बच्चों इसी के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसी में हैं। दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओके। एंड इन दिस बिल्डिंग देयर आर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंडियन पार्लियामेंट के ही हिस्से हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस, ठीक है। सी यहां पे देखो दिखाया भी गया है। कैन यू ऑल सी द सेकंड these two set of photographs? Yes, sir. This is very important, इसको तो पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं इन एग्जामिनेशन, फैक्ट्स आर आस्क्ड। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, हिंदी में हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? संसद, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। अंडरलाइन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज टू हाउसेज, इसके दो हाउसेज हैं, मतलब दो घर नहीं है, मतलब दो हाउस, उसको भी हाउस बोलते हैं, दैट इज दो लेवल्स हैं। There's two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. राज्य सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं राज्य सभा को? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्य, बच्चों हम राज्य किसे बोलते हैं? स्टेट्स को बोलते हैं, अलग अलग राज्य। यस। सो राज्य सभा में स्टेट्स से रिलेटेड मैटर को डिस्कस किया जाता है, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? How many members are there in the Rajya Sabha? 245 members. It is chaired by the Vice President of India. इसके चेयरमैन कौन है? लाइक यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, कल मैंने दिखाया था आप लोगों को वीडियो, आपने देखा था कि who is the spokesperson, who is the chairman of Lok Sabha right now? कल आपने देखा था, what was his name? Om Birla. Very correct. Mr. Om Birla. So he is the, so उसको उनको स्पीकर बोलते हैं, he is the speaker of Lok Sabha. Same way, who is the speaker or who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President of India, Rajya Sabha. Now coming to Lok Sabha. Lok Sabha, English. What is their function? We will discuss that. Don't worry. हम लोग उसका भी देखेंगे, वीडियो भी हम लोग देखेंगे। लोक सभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। वो और रेगुलेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन उठेगा, कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन बैठेगा, कौन जवाब देगा, कौन सा एमपी क्या बोलेगा, सो वो रेगुलेट करते हैं। ही इज लाइक द क्लास मॉनिटर, ही इज काइंड ऑफ लाइक द क्लास मॉनिटर, इवन वी कैन से ही इज काइंड ऑफ लाइक द क्लास टीचर ऑफ द एंटायर लोक सभा, एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज लाइक द क्लास टीचर और मॉनिटर ऑफ द एंटायर राज्यसभा। वो रेगुलेट करते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, लाइक दैट। सो लोक सभा, हाउस ऑफ द पीपल, उसमें कितने मेंबर्स हैं? The total membership of 545 members is presided over by speaker. And who is the speaker? अभी हम लोगों ने नाम लिया। Right now, the speaker is Mr. Om Birla. Yes. अभी के लिए ये भी चेंज होता है, हर 5 साल में ये भी चेंज होता है। Om Birla, who was the speaker? Before Om Birla, you are asking? Yes. खोजो। Yes, sir. सर्च आउट इन गूगल में सर्च करो, मिल जाएगा। लोकसभा स्पीकर डालना, पूरा विकिपीडिया पेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, लाइक आई हैव सीन एटलीस्ट 4 to 5 लोकसभा स्पीकर्स इन माय लाइफ टाइम। चलो, एटलीस्ट 4 तो देखा ही है। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग, एंड वी विल फिनिश दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। पार्लियामेंट बच्चों, लेकिन ये अच्छे से याद रखना, ये जो पूरा ये है, इसको कॉपी में लिख लो। बेटर यू राइट दिस इन द नोट्स, ये जो 1 2 3 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। नाउ अब पार्लियामेंट का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? बेसिकली पार्लियामेंट को हमने क्या बोला? द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। वॉट एवर लॉज, वॉट एवर बिल्स, वॉट एवर थिंग इज बीइंग हैपेंड इन इंडिया इज डन फ्रॉम द पार्लियामेंट। लाइक आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था जो इसको कश्मीर से हटाया गया? Which article was there जिसको हटाया गया? 370. Very correct. Article 370. 370. Oh, wait a second. Article. Sir, what was there in that article which has removed from Kashmir? Very good question, भूमि। उसका जवाब अभी नहीं देंगे, उसका जवाब इन द नेक्स्ट क्लास में भी आई विल गिव यू, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
It is very interesting thing. Otherwise मैं लिख दूंगा. I will write it. I will send a voice note WhatsApp group पे. उसको अच्छे से सब लोग सुनना, सबको पता होना चाहिए what was Article 370. Article 370 को हटाया गया. So Article 370 अपना एक लॉ था, अब उस लॉ को बदला गया. Now who changed the law? The Indian Parliament. So any laws which are made for the country is done by the Indian Parliament. Even amendment. आपको ये बात अब पता है ना सबको ये word amendment? If anything is changed in the constitution or if any new thing is introduced in the constitution, that can also be done by the Indian Parliament only. So created after 1947, as we all know, Indian Parliament 1947 के पहले तो था नहीं. So created after 1947, वो तब British Parliament था, British Indian Parliament. But independent Indian Parliament was established after 1947. Is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. ये एक important statement है कि ये हमारे विश्वास को दिखाता है democracy पे parliament. These are participation by the people in the decision making process and government by consent. Very important. हमारे representatives हम जिनको choose करते हैं national elections में वो कहाँ जाते हैं बच्चों? Law making करने के लिए या questions पूछने के लिए? Where they go? To the Indian Parliament or in a state level to the Vidhan Sabha. So वो Indian Parliament is representation of our own will, of our approval, of our consent. हमारे मत को दिखाता है, हमारे डिसीजन को दिखाता है कि हमने इनको चूज किया है और ये इंडियन पार्लियामेंट में जा रहे हैं डिसीजन लेने के लिए. So it shows our consent. It shows that how people participate in the decision making process. कैसे हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं indirectly हमारे representatives के through. The parliament in our system has immense powers. हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं. Wait a second, गायब हो गया कहाँ से? Just a second everyone. Okay, चलो. I will not take. वो अपने आप ही गायब हो गया. I think God is telling me now to stop the class. Yes. Any questions now? No, sir. Added in the social science group. Please again say. Sir, I am not added in the social science group. You are not still added in the social science group, Aradhya? Yes, sir. I have told you, but you didn't respond. आराध्या, कितने बार मैंने किसी को भी पर्सनली नहीं ऐड किया था. याद है मैंने ग्रुप का पूरा भेज दिया था लिंक. Yes, sir. हाँ आराध्या, तो अभी मुझे मैसेज करो, मैं ऐड करता हूँ तुम्हें. आई एम एडिंग यू. एनीवन एल्स? अभी भी कोई ऐडेड नहीं है? No, sir, I am added. चलो ठीक है. आराध्या मुझे एक मैसेज भेजो व्हाट्सएप पे. आई एम सेंडिंग यू द लिंक. ज्वाइन कर लो. आई एम सेंडिंग यू द इनविटेशन लिंक. यू ज्वाइन. सो ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी होमवर्क दिया आपको क्या क्या खोजना है फोर्थ पीरियड तक, 20-20 मिनट का आपको गैप मिलेगा, तब तक खोज लेना. द फोर्थ पीरियड वी विल डिस्कस मोर अबाउट रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. ओके चलो एवरीवन, सो लेट अस एंड द क्लास एंड बी रेडी फॉर द फर्स्ट पीरियड. थैंक यू फॉर कमिंग सो मेनी पीपल. यस अनुष्का, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir.